سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جو یہ موسم کی مشکلات کے باوجود آپ یہاں موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ کو معلوم ہے اور پچھلے 2 ہفتے سے آپ پورا ملک جو اس قدرتی آفت جو سیلاب کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے, ہمارے میڈیا کے دوستوں اس کو کور کرتے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیسے چاہے وہ ہمارا گلگت بلتستان میں گلیشیل برسٹ ہو یا وہ ہمارا پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد جو سیلاب آیا اور 400 کے قریب لوگوں کا جو نقصان ہوا, اور اس کے فوراً بعد جو پنجاب میں بارشوں کے ساتھ ساتھ دریا میں ریورائن فلڈنگ, اور وہ بھی ریورائن فلڈنگ ہمارے گلگت بلتستان, پختونخوا اور پھر پنجاب میں جس طریقے سے ریورائن فلڈنگ شروع ہوا ہے, اور جس اسکیل پہ دا اسکیل آف دا ڈیزاسٹر, جو علاقے متاثر ہوئے ہیں, جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور جس ایٹ دا پیس آف وچ دس واٹر از کمنگ ڈاؤن. ابھی پنجاب میں ایسے کچھ علاقے ہیں کہ 15 سے زیادہ دن وہاں کے عوام ڈسپلیسڈ ہیں, کیمپس میں موجود ہیں, اور یہ پانی آگے بڑھتا آ رہا ہے. میں قصور میں خود ہو کے آیا ہوں پچھلے ہفتہ. تب اس وقت قصور میں بھی ہائی فلڈ جاری تھا, لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا. اب میں کل ملتان سے ہو کر آیا ہوں, وہاں بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا. کل جلال پور ڈوب رہا تھا, اور آج وہ شیر شاہ کو بریچ بھی کرنے جا رہے ہیں, جس سے مزید مشکلات اور مسائل پیدا ہونے کے امکان ہیں. آج میں سندھ پہنچا ہوں. ہم گدو براج پہ مجھے بریفنگ دیا گیا ہے, اور آج اور اس کے بعد ادھر سکھر براج پہ بریفنگ دیا گیا ہے. میں سب سے پہلے چیف منسٹر سے, ان کے تمام وزیر, ان کے فوکل پرسنز, ان کے پورا ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس محنت کے ساتھ وہ آج سے نہیں مگر پچھلے 15 دن سے سندھ کا تیاری کر رہے ہیں کہ ہر صورتحال جو بھی صورتحال پیدا ہو, ہم چاہیے رہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہو. اینڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک شکر الحمدللہ ہمارا تیاری موجود ہے. لوگ are on the ground in their district taking care of their people. We are bracing ourselves کہ جیسے یہ پانی ہمارے طرف بھرتے آئے گا کہ اس سے ہم آئی تھنک خاص طور پہ سندھ میں اس لیے کہ ہمارے یہاں سپر فلڈ بھی ہوئے ہیں, اور اتنے سارے ہم نے مشکل وقت دیکھے ہیں کہ جب سپر فلڈ کے کم ہو تو ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از کہ ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. فلڈ تو فلڈ ہوتا ہے, سپر فلڈ میں اوبیسلی سپر نقصان ہوتا ہے, لیکن مسائل ہر پوائنٹ پہ ایوری ایونچویلٹی میں مشکلات تو عوام کے لیے, خاص طور پہ غریب عوام کے لیے, اور وہ لوگ جو دریا کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے تو پیدا ہوتے ہیں. چاہے وہ میڈیم فلڈ ہو, چاہے وہ ہائی فلڈ ہو, چاہے وہ خدا نہ خواستہ ویری ہائی فلڈ اور سپر فلڈ ہو, وہ لوگوں کے مشکلات ہوں گے. میرا اپیل ہے ابھی تک آج تک جو ہمارے کچے میں رہنے والے بھائی بہن ہیں, جس سیریسنس کے ساتھ ہمیں اپنا ایویکیویشن کرنا چاہیے, جس طریقے سے لوگوں کو آگے نکلنا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا ہے. ان کو تعاون کرنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ, لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ, کہ ہم نے آپ کے لیے ایسے سائٹس کریٹ کیے ہیں جہاں آپ محفوظ ہوں گے, آپ کے جانور کے لیے سارے فیسلٹیز موجود ہوں گے, آپ کے خاندان کے لیے شاید فیسلٹیز موجود ہوں گے. مگر ساتھ ساتھ ہمارے ٹیمز are stationed at every point, and انشاءاللہ تعالی ہم اس فلڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا صلاحیت رکھتے ہیں, پوری تیاری موجود ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے اویئرنیس شروع کیا ہے وہ اویئرنیس جاری رکھے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس سیلاب کا مقابلہ کریں گے. میں وفاقی حکومت سے
रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, कि जो अजला मुतासिर हुए हैं आगे जाके होने का इम्कान है, लेकिन जो अभी तक जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पंजाब का सेंट्रल पंजाब से होते हुए अब साउथ पंजाब तक पहुंच चुका है, तो मैं समझता हूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद जो पहुंचा सकता है, पहुंचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं और आप नीडी लोग तक, आवाम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं वो मुतालबा आपके सामने भी दोहराना चाहूँगा कि पंजाब के अवाम अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ, कि आप उनको राशंस पहुंचाएं, मदद पहुंचाएं, वो नाकाफ़ी होगा। हमारे पास ये एक्सपीरियंस रह चुका है। हमेशा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है। पिछले सैलाब में आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में जो जिस कुदरती आफत का हमने सामने किया, उस वक्त भी मैं वज़ीर ख़ारजा था, तो वज़ीर आज़म ने ही हिदायत दिया और उसके मुताबिक ये रिलीफ एफर्ट शुरू हुआ। आज भी मेरा रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे पंजाब के अवाम के, बाकी सूबों के अवाम के लिए ये तो फैसिलिटी शुरू करे, और आगे जब सिंध तक ये सैलाब पहुंचता है, और डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड द एरियाज अफेक्टेड, हम उन इधर के लोगों के लिए भी ये रिक्वेस्ट दोहराएंगे। साथ साथ जो तबाही पाकिस्तान की ज़राई शोबे को, पंजाब हमारे मुल्क का ब्रेड बास्केट है, और जो नुकसान पाकिस्तान का ज़रात को, पाकिस्तान का किसान को इस वक्त वो पहले से ही मुश्किल में थे और अब मज़ीद मुश्किल में है। मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था जो कह रहा था कि 1.5 बिलियन का डॉलर्स का नुकसान होगा पाकिस्तान की ज़राई मईशत को। उस लिहाज से मेरा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, और जो भी वफाकी हुकूमत से की तरफ से हो सकता है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो सकता है, हमें अपने पाकिस्तान के किसान को मदद करना चाहिए। और आप ये ना समझे कि आप सिर्फ उन लोगों को मदद कर रहे हैं जो इस सैलाब को से मुतासिर हुए हैं। अगर हम आज हमारे किसानों को ये सहारा पहुंचाए, इनका हाथ पकड़े, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हमारे मीशत के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आने वाले अगले साल में मैं देख रहा हूँ कि ये मुश्किलात फूड सिक्योरिटी से ले के ज़राई शोबे में जो इश्यूज़ है वो सामने आएंगे, और उनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने खुद देखना है, थोड़ा जायज़ा लेना है हमारा सखर बराज का। जैसे आपको मालूम होगा, हमारा वैसे जो इरिगेशन का मिनिस्टर है बहुत मेहनती है, और इस वक्त भी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ ही इज़ बीन ऑन द ग्राउंड। मुझे ब्रीफिंग में बताया जा रहा था कि हमारा 16 गेट्स को बराज से रिप्लेस किए गए हैं, जिसका हमें फ़ायदा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। जैसे ये सैलाब गुजर जाता है और आगे जाके हम मज़ीद जो हमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो भी हम करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से को इस कुदरती आफत से बचाए, और पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि यही वक्त है जब कौम को टेस्ट किया जाता है, और सबको अपने इख्तलाफात भूल कर भाई हो के शाना बिशाना खड़े हो के कुदरती आफत का मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में, इस मुल्क में वो सलाहियत है। हमने माजी में इस किस्म की मुश्किलात देखे हैं, इसको भी इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा इन्फॉर्मेशन का कोई स्पोक्स पर्सन है सर हमारे। अच्छा, स्पोक्स पर्सन जो मौजूद है हमारे मेयर साहब, वो फिर कंडक्ट करे मेरा। मैंने देखा कि आप पूरे पाकिस्तान से विजिट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो सिंध हुकूमत का काफ़ी एक्सपर्टीज़ हो गई सैलाब के मामले में, कि आपने पंजाब गवर्नमेंट को ऑफर किया कि वो आपसे किसी किस्म की कैश
पार्टी ले लेती शायद इतने शहर ना डूबते। दूसरी बात, अब तक सिंध पे प्रेशर था कि वो डैम बनाए डैम बनाए डैम बनाए, तो क्या आप पंजाब में डैम बनने चाहिए ताकि इतना सैलाब ना आए? एक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के हुकूमत में, पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट में इतना सलाहियत है कि वो अपने हालात को पता होते हुए इस सैलाब का भी मुकाबला कर सकते हैं। वैसे जाम खान साहब पंजाब का इरिगेशन वज़ीर से राब्ता में हैं, वो मुसलसल बात भी करते हैं। पिछले हफ्ता आप कहाँ गए थे? कादराबाद, पजनत गए थे अपने इश्यूज़ के लिहाज से, ताकि हम खुद देख सकें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनका जो बातचीत चलता रहता है, अगर उनको हमारा ज़रूरत है या हमें उनसे कोई मदद की ज़रूरत है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक डैम के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स है, हम उनके हक में हैं। बड़े बड़े डैम्स कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर सरदारी के वक्त तक हमने या बनाए हैं या शुरू किए हैं। ये ड्यामर बादशाह के लिए जो सब चंदा मांग रहे थे, इसका फाउंडेशन स्टोन, इसका काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। जो मुतनाज़ा डैम्स है, जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जहाँ लोअर रिपेरियन का हक मारा जाता है, जिस पे सियासी ना कंसेंसस हो, जिस पे ना टेक्निकल कंसेंसस हो, ना फिजिकल कंसेंसस हो, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हर अवामी इशू पे आवाज़ उठाते हैं, उस पे भी हम आवाज़ उठाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस सैलाब के नतीजे में जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। और पूरा कौम में जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है, तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं, मगर जो पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दे, तो आपस में ना लड़ने का कोई वजह है। देयर इज़ नो रीज़न। सैलाब 3 दूसरे दरिया में इस वक्त गुजर रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने, आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने सुना है कि वहाँ वो अपना पॉलिसीज़ रिव्यू करने की सोच रहे हैं कि जिस तरीके से रिवर बेड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ और दूसरी चीज़ें शुरू किए गए, ये मौसमी तब्दीली के बाद हम सबको अपना पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। हम भी सोच रहे हैं कि कैसे हम सकर बराज को बेहतर फाल कर सकते हैं, हम कैसे अपना जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद फाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कैपेसिटीज़ बढ़ाएं। हम समझते हैं कि जो पुराना हमारा कैपेसिटी मौजूद है वो मौसमी तब्दीली के पहले से कैपेसिटीज़ के हैं। तो ये सारे काम चलते रहते हैं, मगर ये एक दिन के काम नहीं होते। हर कौम में आप शॉर्ट टर्म काम करते हैं, मीडियम टर्म काम करते हैं और लॉन्ग टर्म भी काम करते हैं। थैंक यू सर। ये बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल की आपको ब्रीफिंग अभी यहाँ पे दी गई सिंध की, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त क्या तैयारियाँ सिंध की जो की गई हैं, और क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आइंदा 10 साल के लिए भी ये सैलाब मुसलसल अभी आने के खदशात हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की और पीपल्स पार्टी की सैलाब के खुसूसी हवाले कर सकते हैं? थैंक यू। जहाँ तक एक तो ब्रीफिंग आज तो बिल्कुल इधर सखर पे हो रहा है, लेकिन 2 हफ्ते से मैं जाम खान साहब को तंग करता आ रहा हूँ और हमें मुसलसल ब्रीफिंग्स और इत्तला मिल रहे हैं। इस वक्त हम जो मौजूदा कुदरती आफत का या सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं हंगामी हालात में, वो फुटिंग एंड वो चाहे वो हमारा कैंप्स हो, हमारा फोकल पर्सन्स हो, हमारे इवैक्यूएशंस की कोशिश हो, हमारा फैसिलिटीज़ मौजूद हो, या फ्लड फाइटिंग के लिए जगह जगह जो हम चीज़ें पहुंचा रहे हैं, ताकि हम चाहे वो पत्थर हो या जो भी हो, जो एवरीथिंग इज पोजीशन इन द राइट स्पॉट्स। हमारा 40 जो
जो 45 सॉरी थैंक यू फॉर द करेक्शन 45 जो ऐसे स्पॉट्स है जो ख़तरे के स्पॉट्स है जो हम उसको देख रहे हैं जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के जो मंसूबे हैं वो सिंध हुकूमत पहले से इस सैलाब की वजह से नहीं मगर इसलिए कि हम चाह वो मानसून की वजह से या वो रिवराइन फ्लड डे का हम आदि है उसके लिए काम चलता आ रहा है। गुदू पे चल रहा है, इधर सकर पे चल रहा है, जैसे मैंने बताया था आपको 16 गेट्स को हमने इधर चेंज किया है, ऑटोमाइज किया है। गुड्डू पे भी उन्होंने भी ऑटोमाइजेशन का जो फैसिलिटी है वो शुरू किया है। मजीद ऐसे काम आर इन द वर्क्स। बिल्कुल हम सपा से फोकस करें। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के सवाल है ये सिंध के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये पूरा मुल्क के लिए एक मसला रहा है। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले एक्चुअली जब से फॉल ऑफ काबिल हुआ, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या इधर मेरे जलसे जुलूस में हो, मैं मुसलसल ये बात उठाता आ रहा हूँ, सुनने वाला कोई नहीं था कि ये जो फॉल ऑफ काबिल हुआ है और उसके नतीजे में जो हथियार और जो रिसोर्सेज अफगानिस्तान में, मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि ये हथियार जो इन्होंने उधर छोड़ा है ये ना सिर्फ दहशतगर्दों के हाथ आ जाएंगे मगर ये हमारे दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर में मसाइल पैदा होते हैं उन ग्रुप्स के पास ये हथियार आ जाएंगे और हमने ये देखा। मगर मैं जो सिंध पुलिस है, जो सीएम सिंध ने इस इलेक्शन के बाद कोशिशें की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंटरिम गवर्नमेंट के क्राइम रेट्स को और इस वक्त के क्राइम रेट से कंपेयर करूँ तो काफ़ी फ़र्क आए हैं मगर मज़ीद बेहतरी की ज़रूर गुंजाइश है। मैं चाहूँगा कि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था इंटरिम गवर्नमेंट आने से पहले, हम वो सूरत हाल एक बार फिर वापस लेकर आए। उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं हो सकता है कि हम कश्मीर पे हालात के हमारे हाथ में पूरी तरीके से वो काबू नहीं होंगे जब तक रहीम यार ख़ान और कश्मीर के जो इंतज़ामिया हैं वो पूरा तावन के साथ काम करें। माजी में हमने ये किया है और उम्मीद है आगे जाके ऐसे ही होगा। मैं उस तरफ था तो जनूबी पंजाब में भी उनके कच्चे के टैकर्स ने बहुत बड़ा हमला किया जिसका हम मज़म्मत करते हैं। और आज ही मुझे SP घोटकी बता रहा था कि उनके कोऑर्डिनेशन है। ऑब्वियसली इस वक्त जो कुदरती आफत चल रहा है, जो सैलाब हो रहा है, तो हमारा फोकस लोगों को जान बचाने पे है और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस होते हैं या दहशतगर्दों का या इन ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात है, इंशाअल्लाह ताला ये कुदरती आफत को गुजरने दें और फिर हम सही तरीके से कर दें। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी सैलाब की सूरत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पेश की इकदाम नहीं उठाए जाते। कच्चे में जो है जमींदार बंद बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिए कि ये बंद तोड़े जाए, हटाए जाए, जंगलात ख़त्म किए गए हैं, बंद मत यहाँ पे पुल बनाई गई है लाड़काना खैरपुर वाली, वहाँ पे वो कंजस्टेड है और अगर खुदा न खासा सुपर फ्लड आता है तो फिर पानी का जो दबाव है वो सखर और लाड़काना के दरमियान रहेगा, वो बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पेश की इक़दाम करने चाहिए ताकि हुकूमत इस तरह के सैलाब को मुँह दे सके। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सवाल का। जहाँ तक कच्चे में जो छोटे मोटे बंद भी बने हुए हैं, हम तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, हम समझते हैं कि दरख्त ज़रूर लगाए ये सब कुछ, लेकिन ये तो मेरे सैलाब तो नहीं रोकते। और वो सूरत हाल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का कहीं ऑर्डर है उस पर अमल दरामद ज़रूर होना है। जहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पंजाब का ब्रिजेस हो या सिंध के ब्रिजेस हो, ख़ास तौर पे वो ब्रिजेस जो इंडस पे बने हैं या दरिया के उस तरफ जाने के लिए बने हैं, उन पे हमें, जैसे हम चाहते हैं कि इवन सखर बराज का कैपेसिटी हम बढ़ाएं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर करें, वैसे हमें तमाम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। और उसमें उसके लिए हमें अपना जो पुराने ब्रिजेस हैं उनको,
جیسے جام خان مجھے بتا رہا تھا ڈائک ٹو ڈائک بنانا پڑے گا. جو نیا ہمارا کشمور کا جو برج بن رہا ہے وہ اسی طریقے سے بن رہا ہے, اور ہم اپنا پرانا انفراسٹرکچر آل دا وے بیک ٹو جو سکر براج 1930s میں ہمارا بنا ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنا وسائل میں رہتے ہوئے ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. چیئرمین صاحب نے وزٹ کرنا ہے. ہم بالکل کر رہے بھائی. آبویسلی اس وقت تو قدرتی آفت ہمارے ہاں سے گزر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میرا یہاں ہونا ضروری ہے. کیس کمپلیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں اپنا سندھو کے لیے جدوجہد چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا عالمی سطح پہ ہو, ہم ہی سندھو کا آواز ہے اور ہمیں اپنا انڈس کے لیے آواز اٹھانا پڑے گا, کوئی اور تو نہیں کرے گا. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی یا سنتاس معاہدہ کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کا مضبوط موقف دنیا کے سامنے آیا ہے. انفارچونیٹلی آپ نے یہ اسرائیل ماڈل دیکھا ہے کہ انہوں نے فلسطین سے یہ شروع کیا کہ کھانا پینے کے سامان کسی علاقے کو بند کرے, تو مودی نے اسی کا نقل کرتے ہوئے یہ سوچا کہ عالمی قانون توڑ دے. اپنا ہی کیا گیا ٹریٹی سنتاس معاہدہ کو توڑ کے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے معصوم شہریوں کو یا سیلاب میں ڈبا دے یا ان کو پیاسا چھوڑ دے. اس کا مقابلہ انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم بھارت کو یہ اجازت نہیں دیں گے. بھارت کے پاس دو آپشنز ہیں, یا ان کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا عالمی قانون کے مطابق اور اس سنتاس معاہدہ کے مطابق عمل درآمد کرنا پڑے گا, یا 6 کے 6 دریا جو ہے جو لوور ریپیرین کا حق ہے پاکستان کا, پھر وہ 3 پہ نہیں وہ 6 دریا پہ ہوں گے, اور وہ کیس بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس قسم کے جو جدوجہد ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جا کے کوئی آواز اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے. ہمیں مسلسل اس ایشو کو اٹھانا چاہیے, اور میں آپ کو بھی پاکستان کے عوام کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ سندھو کے تحفظ کے لیے آپ ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہو کے پوری دنیا کو اجاگر کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. آخری کوشچن پھر میں نے سکر کو براج دیکھنا ہے. جہاں تک سکھر براج کو بالکل ہی ریپلیس کرنے کی بات ہے, یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے. جب تک جہاں یہ ایک بالکل ایک لانگ ٹرم خواہش ہو سکتا ہے. جو ہم گیٹس ریپلیس کر رہے ہیں, جو آٹومائزیشن ہم کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے پورا دکھایا کہ کیسے انہوں نے پہلی دفعہ 1930s کے بعد اس کو پورا سیل کر کے جو بیس ہے ہمارا براج کا اس کا بھی جائزہ لیا. ان تمام ایفرٹس, تمام خواہش یہ ہے کہ ہم اپنا براج کا نہ صرف کیپیسٹی ہم چاہیں گے کہ وہ ہم اس کی طرف بھرے اور وہ بھرائے, مگر اس کا لائف ہم بھرائے. اور اس وقت جو اقدامات سندھ حکومت نے اٹھائی ہیں, اس جو انالیسس کیے گئے ہیں, جو کنسلٹنٹس نے اس پورا دیکھ کے ہمیں انالیسس دیا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے ہم نے اپنا لائف لانگجیوٹی اس کا بڑھایا ہے. مزید 30 سال بعد ہم نے کیا کرنا ہے, یا اس 30 سال کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنا ہے, وہ ضرور اوبیسلی کوئی اکیلا صوبائی حکومت نہیں کر سکے گا. ہمیں مل کے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ایسا بڑا منصوبہ لے کر آنا پڑے گا. لیکن میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس اسٹرکچر پہ جو کام ہوا ہے انشاءاللہ تعالی جو آنے والے سیلاب ہے اس کو ہم بڑا آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. ایک بات مجھ سے رہ گیا جو میں چاہوں گا کہ میں آخر پوائنٹ کہہ کے وائنڈ اپ کروں, کہ آپ نے انٹرنیشنل کا بات کیا. دیر آر ڈفرنٹ فیزز فار ریسکیو اینڈ ریلیف. ایک ہوتا ہے ریسکیو, پھر ہوتا ہے ریلیف, پھر ہوتا ہے ریکنسٹرکشن. تو اس وقت ہم ریسکیو میں بھی ہیں اور ریلیف میں بھی ہیں. تو میں نے کل بھی ریکویسٹ کیا, آج بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا
کہ عالمی سطح پر جو پاکستان نے اپیل کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز کی پلیٹ فارم کے تھرو جو کرائسس اپیل کرنا ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا، ہم نے نہ صرف ریکنسٹرکشن کے لیے کیا مگر ریلیف کے طور پہ کیا، وہ بھی اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اسٹائپنڈ کا تاخیر ہے، اور وہ اپیل بھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے ہونا چاہیے تھا، اور اگر تب نہیں تو آج بھی فارن آفس اور اس پہ کام کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنلی اپیل کا اگر ہم مدد مانگیں گے تو مدد وہ پہنچیں گے، مدد نہیں مانگیں گے تو اس انداز سے اور اس طریقے سے وہ مدد نہیں ملے گی۔ آپ کو بہت شکریہ، بٹ میں نے